Hello friends, I welcome you all in one more interesting and knowledgeable video on international taxation. So in continuation with the lectures that has been already uploaded on my YouTube channel for international taxation, especially for CA students, CA final students, and especially for other students who have the topic of international taxation in their curriculum, in their subject, right? So in this lecture today we will going to discuss about some important aspects of place of effective management of the company. The basics of place of effective management of the company has been already discussed in the previous lecture that is already available on my YouTube channel. You can access to it and you can view that video as per your comfort whenever you want. It is available on my YouTube channel. So in continuation with that, some advanced level concept of place of effective management we will going to discuss today in this lecture. Advanced in the sense that it is not that difficult, right? But it is somewhere of a higher level that when the company becomes resident due to applicability of place of effective management rules, then what is need to be done with the company, how to calculate profits, how to calculate accumulated or brought forward carry forward depreciation, how to calculate set of carry forward of losses, right? So these are some important aspects. Importantly, how to calculate WDV of fixed asset for depreciation purpose. So today in this lecture we are going to discuss about transitory provision when a company who is incorporated outside India and that company becomes resident in India because of applicability of प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट रूल्स, वो पोयम की एप्लीकेबिलिटी की वजह से, वो कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, पोयम की एप्लीकेबिलिटी की वजह से वो कंपनी जो है इंडिया में रेजिडेंट बन गई है. अब उसके ओपनिंग बैलेंसेस, उसकी फिक्स एसेट्स की WDV, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ इनकम, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट जो है, ये सारी कैलकुलेशन जो है, क्योंकि वो पहली बार इंडिया में टैक्स के लिए असेस होने वाली है, तो ये सारी कैलकुलेशन जो है वो कैसे होगी, इसके बारे में इस लेक्चर में बात करेंगे. एंड इफ यू रियली वांट टू हैव वेरी गुड नॉलेज ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंटली एडवांस कॉन्सेप्ट ऑन ट्रांजिटरी प्रोविजंस, how to determine taxability for a company who is incorporated outside India and become resident in India due to applicability of POEM rules. This lecture is, I would say, very, 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 very important to all of us, right? So let's start with this. Yes, a transitory mechanism for a company. Yes, let's talk about where these provisions lying in the Act. Importantly, we have this chapter 12 BC with us, and the relevant section is section 115JH that talks about transitory mechanism for a company which is incorporated outside India has not been assessed to tax in India earlier, right? So the relevant chapter is 12 BC and the relevant section is 115JH, right? So transitory mechanism for a company which is incorporated outside India which has not been assessed taxes earlier has been covered in the chapter 12 BC comprising of section 115JH. पॉइंट नंबर ए क्या कहता है? पॉइंट नंबर ए बहुत सिंपल बात कहता है कि साहब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो पावर है रूल्स को, स्कीम को नोटिफाई कर दे, उसमें वो एक्सेप्शंस बता दे, मॉडिफिकेशंस बता दे, अडॉप्शंस बता दे, सब्जेक्ट टू विच द प्रोविजन ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ट्रीटमेंट ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड or set of losses, special provision relating to avoidance of tax, the benefit of taxes paid in foreign jurisdiction is available or not, ये सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी. पॉइंट नंबर ए सेज दैट. पॉइंट नंबर बी क्या कहता है? इन अ केस वेयर द डिटर्मिनेशन रिगार्डिंग फॉरेन कंपनी टू बी रेजिडेंट इन इंडिया हैज बीन मेड इन द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स relevant to any previous year, then these transition provisions would also cover any subsequent previous year if the foreign company is resident in India in that previous year and the previous year ends on or before the date on which the assessment proceedings is completed. In effect,
The transition provision would also cover any subsequent amendment up to the date of determination of poem in an assessment proceeding. However, once the transition is complete, then normal provision of the act would apply. Point number B क्या कहता है? Point number B ये कहता है कि असेसमेंट प्रोसीडिंग चालू हुई, उसमें कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो डिटरमाइन हुआ, उस दौरान कोई अमेंडमेंट आती है before completion of the assessment, right? In effect, the transition provision would also cover any subsequent amendment up to the date of determination of poem in an assessment proceeding. मतलब कि असेसमेंट प्रोसीडिंग कंप्लीट होने से पहले तक, जब असेसमेंट चल रही है उस दौरान अगर कोई असेसमेंट आती है, तो वो इस कंपनी पर एप्लीकेबल हो जाएगी. और एक बार ट्रांजिटरी प्रोविजन कंप्लीट हुए तो नॉर्मल जो लॉ के प्रोविजन है, नॉर्मल जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजन है, जिस तरीके से हम हमारे डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स लगाते हैं, वैसे ही हम आपके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर देंगे. वैसे ही हम जो है वो फॉरेन कंपनी की कैलकुलेशंस और सारी चीज़ें जो है वो वैसे ही करेंगे एक बार ट्रांजिटरी प्रोविजन कंप्लीट हो जाए उसके बाद. लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर सी. पॉइंट नंबर सी क्या कहता है? नोटिफिकेशन कौन सी है वो भी बताऊंगा मैं अभी आफ्टर सम टाइम. इन द नोटिफिकेशन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, certain condition including procedural conditions subject to which these adoptions shall apply can be provided for in case of failure to comply with the conditions. अगर वो कंपनी कुछ कंडीशन से कंप्लाई नहीं करती है तो जो नोटिफिकेशन में जो बेनिफिट्स हैं वो उनसे वापस ले लिए जाएंगे और ये मान लिया जाएगा कि उनको वो बेनिफिट कभी दिए ही नहीं थे. Accordingly, where in a previous year any benefit exemption or relief has been claimed and granted to the foreign company in accordance with the notification and subsequently there is a failure with any condition specified therein. अगर नोटिफिकेशन में कोई कंडीशन स्पेसिफाइड है और कंपनी ने उस कंडीशन को कंप्लाई नहीं किया है, कंपनी ने अगर उस नोटिफिकेशन की कंडीशन को कंप्लाई नहीं किया है, तो साहब जो भी बेनिफिट, जो भी एग्जेम्पशन और रिलीफ जो आपने कंपनी को दिए हैं वो मान लिया जाएगा कि वो उसको गलती से दे दिए गए थे. शैल बी डीम टू हैव बीन रॉन्गली अलाउड. पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? द असेसिंग ऑफिसर में रिकम्प्यूट द टोटल इनकम ऑफ द असेसी फॉर द सेट प्रीवियस ईयर एंड मेक द नेसेसरी अमेंडमेंट्स एज इफ द एक्सेप्शन मोडिफिकेशन एंड अडॉप्शन एज पर द नोटिफिकेशन डज नॉट अप्लाई एट ऑल. उसके बाद असेसिंग ऑफिसर जो उसकी इनकम को रिकम्प्यूट करेगा, रिलीफ को हटाएगा, एग्जेम्पशंस बेनिफिट्स को हटाते हुए इस हिसाब से जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा कि साहब एग्जेम्पशन और रिलीफ और इन सब का बेनिफिट उस कंपनी को कभी मिलना ही नहीं चाहिए था. पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 154, मतलब कि रेक्टिफिकेशन, राइट? रेक्टिफिकेशन कब से काउंट होगा? अभी रेक्टिफिकेशन से ही, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन की बात क्यों हो रही है? दिस इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर. अभी मान लीजिए कंपनी ने इस नोटिफिकेशन की कोई कंडीशन ब्रीच करी, असेसिंग ऑफिसर को बाद में पता चला. अभी असेसिंग ऑफिसर को उसके जो नोटिफिकेशन में जो भी बेनिफिट्स हैं, एग्जेम्पशंस हैं, रिलीफ्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो हटाने हैं, उसकी इनकम को वापस से रिकैलकुलेट करना है. तो वो कौन से सेक्शन की पावर्स को यूज़ करेगा? वो यूज़ करेगा सेक्शन 154 जो बात करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर्स की, रेक्टिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और एनी अदर थिंग इन द इनकम टैक्स एक्ट, राइट? तो वो पावर यूज़ करेगा अपनी सेक्शन 154 की, क्योंकि 154 जो है वो डिपार्टमेंट भी कर सकता है, राइट? एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके एसएससी को, और एसएससी भी एप्लीकेशन लगा सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कि साहब जो है रेक्टिफिकेशन किया जाए. तो यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर जो है उसकी इनकम को रिकम्प्यूट करने के लिए सेक्शन 154 जो कि रेक्टिफिकेशन की बात करता है वो यूज़ करेगा, राइट? और जो रेक्टिफिकेशन का पीरियड है वो कहाँ से गिना जाएगा? फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द फेलियर टू कंप्लाई विद द कंडीशन स्टेपुलेटेड इन द नोटिफिकेशन टेक्स प्लेस. मतलब कि फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, राइट? उस प्रीवियस ईयर के एंड से जो 154 का पीरियड है, जो 154 का पीरियड है वो काउंट किया जाएगा. 154 का पीरियड नॉर्मली 4 साल है, तो वो 4 साल का पीरियड जो है वो काउंट किया जाएगा उस फाइनेंशियल, उस प्रीवियस ईयर के एंड से जिस प्रीवियस ईयर में असेसी ने, कंपनी ने जो है वो कंडीशन को कंप्लाई नहीं किया. नेक्स्ट देखते हैं, एवरी नोटिफिकेशन, जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पे पास होगी वो इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ कंपल्सरी टू लेट बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. हाँ जी, पॉइंट नंबर ई क्या कहता है?
पॉइंट नंबर ई ये कहता है कि साहब जो नोटिफिकेशन इशू की गई है उस नोटिफिकेशन का नाम और पता है नोटिफिकेशन नंबर 29/2018 इशूड ऑन 22 जून 2018, जो कि बताती है हमें एक्सेप्शंस, मॉडिफिकेशंस एंड अडॉप्शन सब्जेक्ट टू विच द प्रोविजन ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू कंपटीशन ऑफ इनकम, ट्रीटमेंट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू अवॉइडेंस ऑफ टैक्स एंड कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्सेस शेल अप्लाई इन अ फॉरेन कंपनी। वो फॉरेन कंपनी जो पोएम की एप्लीकेबिलिटी की वजह से जो है वो इंडियन रेजिडेंट मान ली गई है। हाँ जी, तो नोटिफिकेशन नंबर क्या है 29/2018 इशूड ऑन 22 जून 2018। अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ओपनिंग WDV की, कि ओपनिंग WDV जो है वो कैसे कैलकुलेट होगी। बहुत सिंपल तरीका है। पहला ऑप्शन है इफ़ द फॉरेन कंपनी इज असेस्ड टू टैक्स इन द फॉरेन जुरिसडिक्शन। अगर फॉरेन कंपनी पे फॉरेन जुरिसडिक्शन में जहाँ की वो कंपनी है वहाँ पे उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो वेयर डेप्रिसिएशन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन टू अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ कंपिटिशन ऑफ इट्स टैक्सेबल इनकम इन द फॉरेन जुरिसडिक्शन। इफ यस, then WDV of the depreciable asset as per the tax record in the foreign country on first day of the previous year shall be adopted to be the opening WDV of the previous year। लॉजिकली यही करना चाहिए और लॉ में भी यही लिखा हुआ है। अब उस केस में क्या होगा जहां पर ओपनिंग WDV एज पर टैक्स रिकॉर्ड्स ऑफ द फॉरेन कंट्री अवेलेबल नहीं है, उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम मान लेंगे कि कंपनी की जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यू आ रही है उसको टेकअप कर लेना। The WDV shall be calculated assuming that the asset was installed, utilized and depreciated as was actually allowed as per provisions of the law of that foreign jurisdiction. The WDV so arrived at on the first day of the previous year shall be adopted to be the opening WDV for the said previous year. अगर फॉरेन कंपनी इज नॉट असेस्ड टू टैक्स इन द फॉरेन जुरिसडिक्शन, फॉरेन कंपनी पे फॉरेन जुरिसडिक्शन में कोई टैक्स नहीं लगता, तो क्या होगा? WDV ऑफ द डेप्रिसिएबल एसेट इज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर मेंटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉज ऑफ दैट फॉरेन जुरिसडिक्शन शैल बी अडॉप्टेड टू बी द ओपनिंग WDV ऑफ द सेड प्रीवियस ईयर। मतलब कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यू आ रही है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर उसको आप ओपनिंग WDV जो है वो कंसिडर कर लेंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस पे लॉ क्या कहता है? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दोनों का कॉमन ट्रीटमेंट होगा यहाँ पे। इफ द फॉरेन कंपनी इज असेस्ड टू टैक्स इन द फॉरेन जुरिसडिक्शन, अगर फॉरेन कंपनी जो है वो फॉरेन जुरिसडिक्शन में जहाँ पे वो इनकॉर्पोरेट हुई है वहाँ पे वो असेस्ड होती है टैक्स के लिए, तो टैक्स रिकॉर्ड में जो वैल्यू होगी एंड द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर वो वैल्यू मान ली जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज एंड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट ऑप्शन, इफ द फॉरेन कंपनी इज नॉट असेस्ड टू टैक्स इन द फॉरेन जुरिसडिक्शन, अगर फॉरेन कंपनी जो है वो टैक्स के लिए असेस नहीं होती है फॉरेन जुरिसडिक्शन में, तो क्या होगा? देन डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉज ऑफ दैट कंट्री शैल बी डिटरमाइंड वाइज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सेड प्रीवियस ईयर। तो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी बनाती है उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो वैल्यू आ रही है उसके हिसाब से जो भी वैल्यू आ रही है फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर पे, उसके हिसाब से जो है वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हम कंसिडर कर लेंगे। अदर प्रोविजन सच ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन शैल बी डीम्ड एज लॉस एंड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड इन द फर्स्ट डे ऑफ द सेड प्रीवियस ईयर and shall be allowed to be set off and carry forward in accordance with the provisions of the act for the remaining period calculated from the year in which they occurred for the first time, taking that year as the first year. Right. क्या कहता है ये कि जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो है वो आपने निकाले, राइट, जो अभी हमने बात की प्रीवियस स्लाइड्स में, राइट, वो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जो हैं वो प्रोविजंस ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेट कर लिए और बुक्स में वो कैरी फॉरवर्ड होंगे, उनको सेट ऑफ भी कर लिया जाएगा। और कब से ईयर माना जाएगा? उस ईयर से व्हेन द फर्स्ट टाइम हैज़ बीन ऑकर्ड, राइट, जब वो फर्स्ट टाइम ऑकर हुए थे वहाँ से। However, the loss and unabsorbed depreciation of the foreign company shall be allowed to be set off only against such income of the foreign company which has become chargeable to tax in India on account of it becoming resident due to application of POEM। हाँ जी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे समझने के लिए। ये पॉइंट ये कहता है कि जो भी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस जो है आपने निकाले, राइट, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के लिए, राइट, ये दोनों चीज़ें उसी इनकम से सेट ऑफ होंगी जो इनकम इंडिया में एज पर इंडियन लॉज टैक्स होने वाली है, बिकॉज द कंपनी इज़ नाउ
टू बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट इन इंडिया। ये कहता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन केस वेयर द ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस एंड अनएब्जॉर्ब्ड डेट ओरिजिनली अडॉप्टेड इन इंडिया आर रिवाइज्ड or modified in the foreign jurisdiction due to any action of the tax or legal authority, the amount of the loss and unabsorbed depreciation shall be revised or modified for the purpose of set off and carry forward in India। हाँ जी, ये भी एक जो है वो important point है from the examination and from the practical aspect के आपने जो है वो brought forward loss और unabsorbed depreciation जो है कंपनी का कंसिडर किया, सब्सिक्वेंटली वहाँ पे फॉरेन में असेसमेंट हो गई या फिर कोई लॉ में चेंज हो गया, उसकी वजह से जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं और जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसमें वेरिएशंस आ गए, उसमें चेंजेस आ गए, राइट। तो अब ये सवाल उठता है इंडिया में कि आप कौन सी फिगर लेंगे, फिगर आफ्टर वेरिएशन लेंगे या फिर फिगर बिफोर वेरिएशन लेंगे, जो आपने पहले कंसिडर की थी। तो लॉ ये कहता है, लॉजिकली ये होना भी चाहिए, ये बात सही भी है कि अगर फॉरेन कंट्री में लॉ चेंज हो गया या फिर असेसमेंट की वजह से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में चेंजेस आए, तो हमें यहाँ पे इंडिया में भी जो चेंज्ड अमाउंट है, जो वेरिएटेड अमाउंट है, उसको ही कंसिडर करना है। ये कहता है हमारा अदर प्रोविजंस का लास्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट बात करते हैं पीरियड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन केस वेयर द अकाउंटिंग ईयर ऑफ फॉरेन कंपनी डज नॉट एंड ऑन 31 मार्च। हाँ जी, अभी आपकी कंपनी जो है वो इंडिया में रेजिडेंट हो गई बिकॉज ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ पोएम। डिपार्टमेंट आपसे बोलेगा कि साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके आओ, हमें आपकी इनकम कैलकुलेट करनी है। क्यों? क्योंकि आप इंडिया में रेजिडेंट हो चुके हो बिकॉज ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अभी कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दी असेसिंग ऑफिसर को। असेसिंग ऑफिसर जो है गॉट सरप्राइज्ड बाय लुकिंग एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असेसिंग ऑफिसर सेड कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो तो कैलेंडर ईयर है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, बट इंडिया में तो ऐसा नहीं होता। इंडिया में तो हम क्या फॉलो करते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अगर ये प्रॉब्लम है कि उस फॉरेन कंपनी का जो अब इंडिया में रेजिडेंट हो गई है बिकॉज ऑफ पोएम, उसका जो ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च नहीं है, तो क्या होगा? तो उसको कौन से फाइनेंशियल ईयर के, कौन से पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बना के देने पड़ेंगे, ताकि हम उसकी एसेट्स की WDV ओपनिंग निकाल सकें, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस निकाल सकें और सेट ऑफ जो भी होने हैं लॉसेस वो निकाल सकें। हाँ जी, तो कंपनी को क्या प्रिपेयर करना है? द फॉरेन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑन विच द अकाउंटिंग ईयर immediately following said accounting year begins up to 31st March of the year, immediately preceding the period beginning with 1st April and ending on 31st March during which the foreign company has become resident, right? The foreign company is also required to prepare profit and loss account and balance sheet for succeeding period of 12 months beginning from 1st April ending 31st March till the year the foreign company remains resident in India on account of its poem। ये तो हमें पता है, ये तो बच्चों वाली चीज़ है, लॉजिकली ये तो प्रिपेयर होना भी चाहिए, बट ये क्या पिक्चर है साहब? ये पैराग्राफ क्या कह रहा है? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस विद अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ द अकाउंटिंग ईयर ऑफ अ फॉरेन कंपनी इज अ कैलेंडर ईयर and the company becomes resident in India during previous year 2021 for the first time due to its poem being in India, then the company is required to prepare profit and loss account and balance sheet for the period। अच्छा, ये बात तो लॉजिकली क्लियर है कि साहब जब कंपनी रेजिडेंट हुई ड्यू टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ पोएम फॉर प्रीवियस ईयर 2021, तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। दिस इज़ क्वाइट लॉजिकल, ये बात तो सबको समझ में आती है, बट ओपनिंग WDV ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और सेट ऑफ लॉसेस अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के लिए जो है वो 1 अप्रैल 2020 के बैलेंसेस चाहिएंगे आपको, मतलब कि 31 मार्च 2020 के क्लोजिंग बैलेंसेस। तो कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपको पहले वाले पीरियड के भी बनाने पड़ेंगे, राइट? वो इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पे। So for balance sheet for the period 1st January 2020 to 31st March 2020, तो इसको पहले का पीरियड कौन सा बनाना है? 1 जनवरी 2020 से लेके 31 मार्च 2020 तक। अभी 1 जनवरी क्यों? क्योंकि उसका कैलेंडर ईयर फॉलो करती है वो कंपनी, तो 1 जनवरी 2020 से लेके 31 मार्च 2020 तक बनाना है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि ये वाला पीरियड जो है वो 6 महीने से कम है, तो हम इस कंपनी को बोलेंगे कि नहीं, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा, जाओ वापस जाओ
और 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो भी बना एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2020 31 मार्च 2021। बट 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो 6 महीने से कम हैं, राइट। तो उस कंपनी को, राइट, इट ऑल्सो टू बी इंक्लूडेड, तो उस कंपनी को 1 जनवरी 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बनाने पड़ेंगे, मतलब कि फॉर द पीरियड ऑफ 15 मंथ्स। क्यों? क्योंकि जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है, जिस ईयर में कंपनी जो है वो रेजिडेंट बनी है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21, उसके जस्ट पहले का उसका अपन कैलेंडर ईयर का फर्स्ट डे पकड़ें तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक सिर्फ 3 महीने का ईयर होता है, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज इट इज़ लेस देन 6 मंथ्स। तो उसको बोलेंगे कि आप 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाओ, मतलब कि 15 मंथ्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको जो है वो बनाने पड़ेंगे। Example number 2, it is a different case altogether. If the accounting year of the company is from 1st July to 30th June and the company become resident in India during previous year 2021, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि previous year 2021 के financial statements तो बनाने ही बनाने हैं। For the first time due to its poem being in India, then the company is required to prepare profit and loss account and balance sheet for the period 1st July 2019 to 31st March 2020, जिससे हम उसके opening balances जो है वो निकाल पाएँ। It also required to prepare profit and loss account and balance sheet for the period 1st April 2020 to 31st March 2021। ये तो लॉजिकली क्लियर है। अब यहाँ पे इससे पहले के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्होंने बनाए, ये बनाए 1 जुलाई 2019 से 31 मार्च 2020 तक के, राइट। तो अभी ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनका पीरियड जो है वो मोर देन 6 मंथ्स है, तो ये इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से काम चल जाएगा। दिस इज सफिशिएंट कंप्लायंस फॉर दैट रीजन। So the loss and absorbed depreciation as per the tax record books as the case may be of the foreign jurisdiction shall be allocated on proportionate basis। हाँ जी, तो हम उसको क्या करेंगे, proportionate basis पे allocate करके जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी TDS प्रोविजंस कैसे एप्लीकेबल होंगे? एक तरफ वो कंपनी है आपके पास जो फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुई है और इंडिया में रेजिडेंट हो गई बिकॉज ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट रूल्स। एक तरफ है आपका TDS का प्रोविज़न का सेक्शन 195, एक तरफ है आपके पास 194C, 194J और दुनिया भर के सेक्शंस, राइट, 194I। तो कौन सा सेक्शन लगेगा साहब? 195 जो पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट की बात करता है, या फिर सेक्शन 194C, JI एट्सेट्रा, राइट। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि साहब जो प्रोविज़न TDS के प्रोविज़न जो है वो जो फॉरेन कंपनी पे लगते आ रहे हैं वही लगते जाएंगे, मतलब कि TDS की कंप्लाइंस होगी साहब सेक्शन 195 में ही, राइट। 194C, 194I जो है वो अप्लाई नहीं होंगे। क्लियर? Compliance to those provisions of Chapter 12B of the Act as are applicable to the foreign company prior to it becoming Indian resident shall be considered sufficient compliance of the provision of the said chapter। जैसा कि हमने देखा कि जो TDS है वो सेक्शन 195 में ही कंप्लाई कर देना है। Provisions of section 195(2) relating to application to assessing officer to determine the appropriate application sum payable to others in such manner so as to include payment to the foreign company। 195 subsection 2 बात करता है कि आप असेसिंग ऑफिसर को एक चिट्ठी लिख के ये पूछ सकते हो कि साहब हमारे ऊपर बता दो TDS लगेगा या नहीं। अगर लगेगा तो उसकी क्वांटिटी जो है वो क्वान्टिफाई करके हमें दे दो। उसके प्रोविज़न जो हैं वो भी जो जिस मैनर में लगते आ रहे हैं उस मैनर में जो है वो एप्लीकेबल होते जाएंगे। हाँ जी, अभी जो फॉरेन में टैक्स कंपनी ने दिया है उसका डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? उसका डिडक्शन बिल्कुल मिलेगा। अगर 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 वो इनकम सेम इनकम इंडिया में दोबारा से टैक्सेबल हो रही है तो उसका डिडक्शन जो है, जो फॉरेन में आपने टैक्स पे किया है उसका डिडक्शन इंडिया में मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब सेम इनकम इंडिया में दोबारा से टैक्सेबल हो रही है। क्लियर? Non-applicability of the notification. The above exceptions, modification, adoption shall not apply in respect of such income of the foreign company which otherwise would have been chargeable to tax in India even if the foreign company had not become Indian resident। ये पॉइंट क्या कहता है? मान लीजिए फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में रेजिडेंट हो गई बिकॉज ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ पोएम। अब उस कंपनी की इंडिया में एक प्रॉपर्टी है, इंडिया में एक लैंड एंड बिल्डिंग है जो उससे रेंटल इनकम अर्न करती है। अभी एज पर रूल्स ऑफ इनकम, एज पर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये वाली इनकम जो है इट इज़ ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया बिकॉज द लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज इन इंडिया। सो दिस इनकम इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, राइट।
तो ये इनकम जो है इंडिया में वैसे ही टैक्स होती रहेगी जैसे ये पहले होती आ रही थी। इस इनकम पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा बिकॉज ऑफ द कंपनी बिकमिंग रेजिडेंट इन इंडिया ड्यू टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ पोएम रूल्स, राइट। और एक्सेप्शन, मॉडिफिकेशन, अडॉप्शन जो नोटिफिकेशन में दिए गए हैं ये इस पर्टिकुलर इनकम पर अप्लाई नहीं होंगे। मतलब कि वो नोटिफिकेशन जो स्पेशली ट्रांजिटरी मैकेनिज्म को हमें बताती है वो नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर इस इनकम पर एप्लीकेबल नहीं होगी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द नोटिफिकेशन वेयर फॉरेन कंपनी बिकम रेजिडेंट इन द सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर ऑल्सो। In case where the foreign company is said to be resident in India during a previous year, immediately succeeding a previous year during which it is said to be resident in India, the exception, modification and adoption shall apply to the said previous year subject to the condition that WDV brought forward loss and unabsorbed debt is to be adopted on first day of the previous year shall be those which have been arrived at on the last day of the preceding period in accordance with the provisions of this notification. अगर कोई सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में भी कंपनी जो है वो नॉन रेजिडेंट हो जाती है तो ये लॉजिक सी बात है कि साहब जो क्लोजिंग बैलेंस होंगे उसके पिछले वाले प्रीवियस ईयर के वही ओपनिंग बैलेंस आप कंसिडर कर लेना फॉर द पर्पज ऑफ WDV ऑफ द एसेट, फॉर द पर्पज ऑफ ब्रॉट फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज एंड फॉर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन. No effect on other transaction. Any transaction of the foreign company with any other person or entity under the act shall not be altered only on the ground that the foreign company has become Indian resident. हाँ जी, कोई और ट्रांजैक्शन उस फॉरेन कंपनी की जो ऑल्टर या अफेक्ट नहीं होगी बिकॉज सिर्फ इस रीज़न से कि वो कंपनी जो है वो इंडिया में रेजिडेंट हो गई है बिकॉज ऑफ पोएम. Applicability of other provision relating to the foreign company subject to the above exception, modification and adoptions specified provided by this notification, the foreign company shall continue to be treated as a foreign company. फॉरेन कंपनी हमेशा जो है वो फॉरेन कंपनी ही रहेगी इवन इट इज़ सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया. देखो यहाँ पे एक डिफरेंस समझने वाली बात है कि there are two types of foreign company. A foreign company resident in India and a foreign company not resident in India. But a foreign company will always remain a foreign company, can never become a domestic company because that foreign company is resident in India, right? Consequently, the provision specifically applicable to a foreign company shall continue to apply to it. Foreign company के जो provisions है वो उस पर लगते रहेंगे भले से वो resident है. फॉरेन कंपनी क्योंकि रेजिडेंट हो गई है इसका मतलब ये नहीं है कि वो डोमेस्टिक कंपनी बन जाएगी, राइट. नॉन रेजिडेंट पर्सन शेल नॉट अप्लाई टू इट. लॉजिकली इट इज़ करेक्ट. क्यों? क्योंकि अब वो रेजिडेंट हो चुकी है बिकॉज ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट रूल्स. द प्रोविजंस स्पेसिफिकली एप्लीकेबल टू रेजिडेंट शेल अप्लाई टू इट. देयर आर सम स्पेसिफिक प्रोविजंस विच आर एप्लीकेबल ऑन द रेजिडेंट लाइक दे हैव टू पे टैक्स इन इंडिया. सो दीज प्रोविजंस आर इक्वली अप्लाइड टू द फॉरेन कंपनी बिकमिंग रेजिडेंट इन इंडिया. एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स रेट ऑन फॉरेन कंपनी. हाँ जी, यहाँ पे साहब एक कन्फ्यूजन अराइज होता है कि जो फॉरेन कंपनी की टैक्स रेट है वो है 40% और जो डोमेस्टिक कंपनी की टैक्स रेट है वो है 25%. अब फॉरेन कंपनी इंडिया में रेजिडेंट हो गई तो उस पर कौन सी टैक्स रेट लगेगी, 40 या 25? तो यहाँ पे इस पोजीशन को क्लैरिफाई किया गया. क्लैरिफाइड पोजीशन ये है कि साहब फॉरेन कंपनी विल ऑलवेज गोइंग टू रिमेन अ फॉरेन कंपनी इवन इफ दैट कंपनी बिकम्स रेजिडेंट इन इंडिया. सो द टैक्स रेट ऑफ 40% विल कंटिन्यू टू बी एप्लीकेबल ऑन द फॉरेन कंपनी दो इट इज रेजिडेंट इन इंडिया, राइट. दिस पोजीशन हैज बीन क्लैरिफाइड हियर इन द ट्रांजिशन मैकेनिज्म. कब से एप्लीकेबल है नोटिफिकेशन? साहब एप्लीकेशन जो है शैल बी कम इन टू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2017. फॉरेन जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है? जहाँ पे वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है फॉरेन कंट्री में. जो एक्सचेंज रेट्स है वो हम कैलकुलेट करेंगे रूल 115 ऑफ इनकम टैक्स रूल 1962 के अनुसार जो कि एनेक्स 2 में गिवन है. सो ये था एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर अबाउट एडवांस टॉपिक ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट दैट इम्पॉर्टेंटली कवर्स ट्रांजिशन मैकेनिज्म जहाँ पे एक फॉरेन कंपनी इंडिया में रेजिडेंट बनती है ड्यू टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ पोएम. तो आप ओपनिंग WDV ऑफ एसेट कैसे निकालेंगे, कौन से ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाने हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा, अनएब्जॉर्ब डेब्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा. These are the important aspects that has been covered in the lecture, right? So we will soon come out with the next lecture on foreign taxation. So please, if you are a student studying this international taxation subject in any of your exam, then these lectures may definitely help you.
Thank you for watching this video. Subscribe to the channel if you have not subscribed it. Click on the like button of the video and try to share this video with lot of people, with lot of your friends who are dealing with this subject. Thank you. Thanks a lot for watching this video. Bye.